فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہے۔ نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ فیلڈ مارشل کے ہمہ جہت کردار کا معترف 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں کہا، بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیریز بھی جیت لی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی نصف سینچریاں ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 176 رنز ہی بنا سکی۔ ایلک ردرفورڈ کی نصف سینچری رائے گاں، صاحبزادہ فرحان مین آف دا میچ اور محمد نواز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد اقصی پر اسرائیلی وزراء اور آبادکاروں کے حملے کی مذمت۔ القدس کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا، اسرائیلی اقدامات 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی عقیدے پر حملہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایسے واقعات مشرق وسطیٰ کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی کا ایک اور مبینہ مقابلہ، قتل، ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں ملوث 2 ڈاکو مارے گئے، 2 فرار۔ ہلاک ملزمان کی شناخت نعیم اللہ اور حسین کے نام سے ہوئی۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,42,174 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ حصص مارکیٹ میں 1,139 پوائنٹس کا اضافہ۔ انٹر بینک میں 18 پیسے کی کمی، ڈالر 282.53 کا ہو گیا۔ پاکستان کا اصولی موقف ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی، کوئی جواز نہیں تھا اس جنگ کا۔ ایرانی فوجوں نے، ایرانی عوام نے بہت بہادری، شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسرائیل کے ڈیفنس کو ایرانی میزائلوں کی بارش میں بری طرح ایکسپوز کیا۔ آپ کی لیڈرشپ نے ایران کی سالمیت اور خود مختاری اور حمیت کا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان کا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ ایرانی قیادت نے فلسطین اور غزہ کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ پاکستانی حکومت اور عوام بھی فلسطین اور غزہ کے ساتھ ہیں۔ اسلامی دنیا غزہ میں جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی کے لیے بھرپور آواز اٹھائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال غزہ سے مختلف نہیں، کشمیر میں بھی بے گناہوں کا خون گر رہا ہے۔ اقوام عالم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے تقریر کے اختتام پر سعدی شیرازی کا شعر بھی پڑھا۔ دوست مشمار آنکھ در نعمت زنت، لاف یاری برادر خواندگی۔ دوست مشمار آنکھ در نعمت زنت، لاف یاری و برادر خواندگی۔ دوست آن باشد کہ گیرد دست دوست، دوست آن باشد کہ گیرد دست دوست، در پریشان حالی دور ماندگی۔ شکریہ پاکستان۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کے خلاف حمایت پر پیغام۔
मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में खिताब का कुरानी आयत से आगाज़। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर, कहा इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है, जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में नई गर्म जोशी। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मसूद पज़ेश्कियान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोश मुसाफहा, खैर सगाली, जुमलों का तबादला। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात। सालाना तजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सरहदी ताउन बढ़ाने समेत कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना। पाकिस्तान और ईरान का मौशी रिश्ता मजीद मजबूत। ईरानी सदर की इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा समुद्री और ज़मीनी रास्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दोनों ममालिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबक ने कहा, सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर तवज्जो देना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मईशत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। 9 मई पर सजाओं और नाअहलियों ने तनाव मजीद बढ़ा दिया। बैरिस्टर गौहर का बोनेर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुख्तदर हल्के सियासी तनाव खत्म करने के लिए किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए अब कदम पीछे जाना होगा। अब होश के नाखुन लो, कुछ आसानियां पैदा करो। मजीद मुकदमात और नाअहलियों से बाज आ जाओ। लोग यही पूछते हैं कि बानी पीचा कब रिहा हो रहे हैं। जब तक वो रिहा नहीं होंगे, हर तरफ से यही आवाज आएगी कि बानी को रिहा करो। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क के हालात को समझना चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को बानी की रिहाई की बजाय रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई से जो लोग मिलकर आते हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। पीटीआई को पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं करना चाहिए। कराची का मुकदमा सिर्फ एमक्यूएम वाले ही लड़ सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, एमक्यूएम में वडेराना और जागीरदाराना सोच नहीं कि 4 मंसूबे के लिए अगला मेयर एमक्यूएम का लाना होगा। कराची का ताजर और सनतकार बिजली, पानी, गैस और अमनो अमान मांग रहा है तो क्या गलत है। एमक्यूएम वाले साहब से भाई बनेंगे तो शहर के हालात ठीक होंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर को 2 ठोक जवाब। कहा, गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की, लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। खुद को साहब कहलवाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लकब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड पर रख देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म बारिशों से नुकसानात के तनाजुर में अहम ऐलानात करेंगे। सिंध हुकूमत का अवामी रिलीफ की जानिब बड़ा कदम। ऑन ग्रिड सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। दरखास्त तलब। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर होम सिस्टम दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1,30,000 ऑन ग्रिड सार्फिन मुस्तफीद होंगे। सोलर होम सिस्टम में सोलर प्लेट, बैटरीज, पंखा और लाइट शामिल। BISP के स्कोर कार्ड पर मुतवसत खानदानों को भी अलग सोलर सिस्टम की फराहमी। फराइज की अदायगी में जानों को कुर्बान करने वालों को सलाम। मुल्क में यौम शोहदाए पुलिस आज अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। यादगार शोहदा पुलिस रावलपिंडी पर शम्मा रोशन करने की पुरवकार तकरीब। पुलिस अफसरान, एहलकारों और सिविल सोसाइटी की शिरकत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं।
कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, पुलिस के अफसर और जवान फ़र्ज की अदायगी में जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा के अजीम अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। ईरान ने इसराइल जंग के बाद पहली बार फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल खोल दी। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल है। चीन और रूस की जापान के समंदर में मुश्तरका बहरी मशक़ें, फ़िज़ाई दिफा, एंटी मिसाइल ऑपरेशंस और समुद्री जंगी कार्रवाइयाँ शामिल। रूसी बंदरगाह और व्लादिवोस्तोक के करीब मशक़ें 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। दोनों ममालिक बहरुल काहिल के मखसूस इलाकों में मुश्तरका गश्त भी करेंगे। पानी चोर मोदी वोट चोर भी निकला। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता।